Hello students of Student 10. Once again I am in front of you after a short break to teach you economics. If we will discuss or remind of earlier classes, then you will find that in last few videos in details we have studied about national income, right? We have just learned by three methods to calculate national income, right? And apart from the calculating national income, we have also seen few examples. I think now it is clear to everyone, right, about the national income. Since why national income is important, so then national income is important for any country, right? National income is important for any country, that all the development or the progressive, right, all the growth criteria directly or indirectly just depends on income, or whatever the condition of any country in every sector, obviously anyway just related to their national income. On the basis of the national income, every country just make their plan for the further year. Every country just make their budget for the expenditure in every sector, right? So it is very important to calculate national income, right? And I think now it is clear to everyone. Once again we just go back to part third of development chapter. I mean, once again we just go to the video just made as part third of economics chapter development, because from part 4 to last video we have just discussed on national income. So once again, to continue the chapter and understand the topics of your chapter clearly, you have to remind with the part third video. Whenever you will see the part third video, you will find that I have explained you few definitions, right? And in that video I have also explained you that other than income there are so many other factors which are responsible for any country's development. In other words, try to understand, development do not concern only the economical development. Apart from the economical development, there are so many factors responsible for development, right? So I have explained in that videos about the net attendance ratio, net attendance ratio, literacy rate, infant mortality rate. These are the different other factors, right, that those are responsible for development. So with examples, right, I will explain today, and this will help you to understand the clearly the importance of all those definitions. I think it is clear to everyone about the different definitions like net attendance ratio, per capita income, infant mortality rate, literacy rate. If you have any doubt, then see that videos once again, right? Then it will be clear once again, right? Now let us see here what I just indicate written here: income and other criteria. Income and other criteria that is responsible for the assigning development. Apart other than income, there are many factors which are indicators of development. If we talk about a country,
not only country, if we talk about different states also, right? For different state or province also, apart from the income, there are so many other factors, right? Only the basis of the economical development, economical progress or economical growth, a country or a place or a state cannot be called developed. So what are those other factors? I have explained you already, right? Now with an example, I would like to give you a clear story in your mind. Now see here, I have explained you infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. Now here is a table given, per कैपिटा इनकम. इस टेबल में इंडिया के 3 स्टेट का पर कैपिटा इनकम दिया गया है एनुअल, एक साल का इनकम का, एक साल के इनकम को पर कैपिटा इनकम के, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ, सॉरी, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. तो अगर यहाँ पर जिस स्टेट का दिया हुआ है तो उस स्टेट का टोटल इनकम जितना एक साल में हुआ, 1 एनम में हुआ, 1 ईयर में हुआ, उसके अपोन में वहाँ के पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे पर कैपिटा इनकम निकल जाता है. पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं एंड फॉर्मूला भी बता चुके हैं कि हाउ इज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड. तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, राइट? नाउ दिस इज टेबल is just taken from the economical survey done in 2016-17 by NSSO of Government of India. NSSO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूनिट है जो कि सर्वे करने का काम करती है डिफरेंट इकोनॉमिकल सेक्टर में, डिफरेंट सोशल सेक्टर में. ठीक है, ये क्या करती है? सर्वे करती है, पीपल्स की इंफॉर्मेशंस को गैदर करती है और उसके बेसिस पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है क्या करती है? रिलीज करती है. कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR कहने का मतलब क्या हुआ? कि वट एवर द इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, वट एवर द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिकल, सोशल एज वेल एज द डिफरेंट अदर सेक्टर्स हैपेंड इन ईयर. और प्रत्येक साल जब इस तरह का रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कैसे हमारी इम्प्रूव हुई है या पिछले ईयर के कंपेयर में हम डाउन गए हैं. तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. याद रखना है, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NSSO. NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट. भारत का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, उस स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का एक यूनिट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करती है? तो वो ह्यूमन का इकोनॉमिकल और सोशल इंफॉर्मेशंस गैदर करने का काम करती है थ्रू द सर्वे, राइट? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस टेबल को हम स्टडी करेंगे. तो टेबल को स्टडी करने से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगा. अब इस टेबल को हम देखें तो यहाँ पर 3 स्टेट के बारे में दिया गया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार, राइट? ये 2016-17 का रिपोर्ट है. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ईयर 2016 एंड 17. 2016 और 17 में हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना था? 1,62,034 रुपीज. मतलब एक साल में, 1 ईयर में हरियाणा का एक पॉपुलेशन, एक पीपल का जो इनकम था वो कितना था? 1,62,034 रुपये. मतलब इसको अगर देखा जाए, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इनकम निकल जाएगा, और अगर 365 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? उस हरियाणा के 2016-17 का एक पीपल का पर डे का इनकम निकल जाएगा. ठीक है,
इसी तरह से केरला का देखा जाए तो केरला का इनकम कितना था 1,55,516 and at the third position we will see the condition of our state Bihar. We will find that the per capita income of Bihar is 34,168. अब इस डेटा से आपको आप ये अंदाजा लगा लो, ठीक है, कि इस मतलब इस टेबल से ये पता चल रहा है कि इसका मतलब हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो था 2016-17 में वो सबसे ज्यादा था 1,62,034 रुपए। उससे कम पोजीशन मीन्स इकोनॉमिकल कंसर्न में देखा जाए, if we see in economical concern then we will find that economically on the basis of per capita income the condition of Haryana is much better than the other two states Kerala and Bihar. In the same, this is not a story of only 3 states of India. Such data, such information of whole of different states of our country be seen on net. आप इंटरनेट पे पूरे कंट्री के अलग अलग राज्यों का पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हो। तो उस कंडीशंस में इसका मतलब इन बिहार का जो पोजीशन 34,168 अगर देखा जाए तो लगभग 5 टाइम्स का डिफरेंस हो गया। बिहार के पर कैपिटा इनकम से लगभग 5 गुना पर कैपिटा इनकम हरियाणा का है। ऐसा क्यों? इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हरियाणा में जो हुआ वो बिहार के कंपेयर में 5 गुना हुआ। इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखें, इट मीन्स whatever the per capita income is just based on what? It's based on the productivity. It means in the agriculture sector, in the industrial sector, as well as in the service sector, there is a lot of productivity, much more times productivity happened in Haryana compared to Bihar. That's why per capita income of Haryana is about 5 times than Bihar. Now you will see the conditions of Kerala. It is about 1,55,516. इसका ये क्या है? ये केरला हरियाणा से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। If you will see the condition, then you will find that the condition of Kerala is not much behind than the Haryana. But अगर if we talk about agriculture condition, the productivity and the agriculture equipments available in different states, we will find that there is very good condition of Haryana compared to other state. हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ की एग्रीकल्चर का जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न मेथड से वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। इसके कारण वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हरियाणा जो कि काफ़ी छोटा स्टेट है, अगर बिहार के से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि बिहार का पॉपुलेशन अबाउट टू 10 करोड़ है, लेकिन वहीं पर हरियाणा का पॉपुलेशन हमारा कितना है, लगभग, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ का 2 करोड़ के बीच की पॉपुलेशन वाले स्टेट है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे क्या है, इट मीन्स वहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा है और उस कंपेयर में पॉपुलेशन कम है। तो जितनी एरिया है उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो मेथडोलॉजी है वो क्या साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड से होती है, जिसके कारण से पॉपुलेशन कम होने के कारण से प्रोडक्टिविटी मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा हो गया और पॉपुलेशन क्या है, डिनोमिनेटर उसकी वैल्यूज कम है, और जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या आती है, ऑब्वियसली ग्रेटर आएगी। लेकिन whenever we will calculate the per capita income of Bihar, then we will find that the population of Bihar is many more times than Haryana, and the productivity method is comparatively very traditional in Bihar. अगर बिहार में देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, कंपेयर में हरियाणा या दूसरे स्टेट के कंपेयर में काफ़ी पीछे है। यहाँ के ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टेक्निकली इफिशिएंट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ पर फ्लड, नेचुरल डिजास्टर जैसे प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा इफ वी विल सी द हरियाणा जो है वो दिल्ली के करीब है, जो कि कैपिटल स्टेट है वो दिल्ली,
और कैपिटल्स के काफ़ी करीब होने के कारण वहाँ पर हरियाणा में बिहार के कंपेयर में कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री भी है। इस कारण से आप देखोगे कि वहाँ का मतलब कि प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा है। अब एक बात बताइए, नाउ देयर इज कंसर्न टू गिव दिस टेबल हियर इज व्हाट। यहाँ कंसर्न टेबल एक्सप्लेन करने का ये नहीं है कि केवल हरियाणा का इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे बेटर है, राइट। हरियाणा का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो काफी बेटर है। अब हम लोग अगर देखा जाए, और आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नोज वेरी वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड स्टेट, then we will find that the Kerala is more developed than Haryana. No doubt, in agriculture, in productivity, in per capita income, Haryana is just on top compared to Kerala. But whenever we will see overall condition, then we will find that the condition of Kerala is better than Haryana. हरियाणा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्टिविटी में, मतलब पर कैपिटा इनकम, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से हमें क्या कैलकुलेट होता है? पर कैपिटा इनकम होता है। इनकम आप कह सकते हो, लेकिन इनकम इज नॉट ओनली फैक्टर टू शो द रियल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट। Whenever you will see the condition of Kerala, then you will find that the literacy rate, the infant mortality rate, net attendance ratio, these all things are comparatively very better than Punjab and Haryana, and that's why you will find you will find that Kerala is much better, much more developed than Haryana. Dear students, इस टेबल से आप इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हो, राइट। इस टेबल से आप इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हो कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का सबसे ज्यादा है और बिहार का सबसे कम है, राइट। और केरला क्या है? मिडिल। केरला जो है वो हरियाणा से जस्ट उसके पीछे है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेट अटेंडेंस। अब एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने चिल्ड्रेन हैं, उस चिल्ड्रेन में 14 से 15 साल के उम्र वाले कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी परसेंटेज टोटल वहाँ पर बच्चे जो अवेलेबल हैं उसी को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। आपके पिछले वीडियो, थर्ड वीडियो में बताया भी कि आपके लोकेलिटी में अगर 500 बच्चे हैं और 500 में 300 बच्चे 14 से 15 साल की उम्र के जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 300 अपॉन 300 अपॉन 500 इंटू 100 कर लिए तो हम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज नेट अटेंडेंस रेशियो हम निकाल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्कूल गोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स अवेलेबल ऑफ द सेम एज ग्रुप 14 to 15 years into 100 is just give you the net attendance ratio. Now see another table I have given here to understand you the importance of infant mortality rate, net attendance ratio and literacy rate. In no doubt, whenever this table and this table be compared, you will get a clear cut importance. Here 3 states are just taken: Haryana, Kerala and Bihar. Once again, Haryana, Kerala and Bihar, which was taken in earlier table. Now, infant mortality rate. हरियाणा में 2015-16 का IMR निकालते हैं। अगर जो ये भी जो है ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी आपको क्या है NSSO के द्वारा रिलीज किया गया है। तो इस टेबल में 2015 और 16 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो पता है कि प्रत्येक 1 ईयर में 1 साल से कम उम्र
1 साल तक के उम्र के 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, उस बच्चे में कितने प्रत्येक साल डेथ कर जाते हैं, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मान लीजिए 1000 मतलब लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमेशा 1000 में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि 1000 बच्चे अगर ने जन्म लिया, उस 1000 बच्चे में कितने बच्चे डेथ कर गए। दिस इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट पता है, जितने एक सेम एज ग्रुप में जितने चिल्ड्रेन अवेलेबल है, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने टोटल बच्चे हैं और उसमें जितने पढ़े लिखे हैं, ये क्या हो गया, लिटरेसी रेट। और नेट अटेंडेंस रेशियो, अभी आपको बताए कि एक सर्टेन एज ग्रुप के कितने लोग बच्चे में कितने टोटल बच्चे में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। लिटरेसी रेट जितना वहाँ पर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो 2015-16 का जो रिपोर्ट है, तो हरियाणा में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो उसमें से 36 बच्चे डेथ कर जाते थे। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ हरियाणा ऑफ 2015 एंड 16। यू विल सी दैट इन द कंडीशन केरला यू विल फाइंड दैट 1000 बच्चे जो न्यू बॉर्न होते थे 1 ईयर तक के बच्चे में से 1000 में से 12 बच्चे डेथ कर जाते थे। और थर्ड जो है वो बिहार, जिसमें कि कितना है 1000 बच्चे में 42 बच्चे जो क्या कर जाते थे, डेथ कर जाते थे। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि नो डाउट अगर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा था, मतलब इनकम ज़्यादा था, तो उसका हेल्थ कंडीशंस भी बेटर होना चाहिए ना, नहीं। तो इनकम दूसरा फैक्टर है और ये दूसरा इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भले ही पर कैपिटा इनकम कम है, केरला का देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम हरियाणा के कंपेयर में कम है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कंडीशन बेटर है। वहाँ 1000 बच्चे में केवल 12 बच्चे ही डेथ करते हैं। इट मीन्स व्हाट, द हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट बेटर देन हरियाणा ऑफ केरला। केरला का हेल्थ कंडीशन, हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, बहुत बेहतर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का हेल्थ पे वर्क जो हो रहा है वो बेटर हो रहा है। पीपल्स ज़्यादा अवेयर्ड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो हेल्थ सेंसिटिव है। दिस शोज दैट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ केरला इज जस्ट बेटर देन, राइट। It means the health conditions of people of Kerala is just better than Haryana. Right? Now, second thing, literacy rate. If we see the literacy rate, obviously 82%. 100 में 82 पीपल्स जो है हरियाणा में एजुकेटेड है, मतलब लिटरेट है। इट मीन्स क्या कि 18 पीपल क्या है, इलिटरेट है। If we see the Kerala, then we will find that about 94% peoples are educated. Only 6% peoples are illiterate. 94% peoples are literate and only 6% are peoples are illiterate. And in the same way, we will see the condition of Bihar. Only 62% of peoples are educated. तो हेल्थ कंडीशंस में हम जब लिटरेसी, अगर हम लोग अभी हम लोग मतलब इकोनॉमिकल सेक्टर पर हम लोग सोशल सेक्टर के फैक्टर्स को देख रहे हैं, तो सोशल सेक्टर के फैक्टर्स में हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट में भी क्या है, हरियाणा जो है वो केरला से काफ़ी पीछे है। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ऑब्वियसली जहाँ के पीपल्स ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनका क्या होगा, लाइफ स्टाइल बेटर होगा, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बेटर होगा, उनकी अवेयरनेस बेटर होगा। ऑब्वियसली उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट कंसर्न की अगर बात करें, दैट विल बी बेटर। तो अगर हम जब फिर लिटरेसी रेट के बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि केरला इज बेटर देन हरियाणा और बिहार। लेकिन बिहार की पोजीशन हम देखें, यहाँ भी काफ़ी डाउन है। इट मीन्स क्या, इकोनॉमिकल सेक्टर के अलावा सोशल सेक्टर्स में भी मतलब प्रोग्रेस जो है वो बिहार का क्या है, काफ़ी स्लो है। नाउ थर्ड फैक्टर्स हम लोग देखें, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी 2013 और 14 का रिपोर्ट है। 2013-14 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि हरियाणा में क्या है, 61 जितने बच्चे वहाँ पर 14 से 15 एज ग्रुप के थे, उसमें केवल 61% बच्चे ही क्या करते थे, स्कूल कंटिन्यू कर पाते थे। मतलब उस एज आते जो है मतलब 100 में से 39 बच्चे स्कूल जाना
छोड़ देते थे या स्कूल नहीं जाते थे। वहीं पर अगर हम बिहार का कंपेयर करें केरला का, तो केरला का कंडीशन बहुत बेटर है। और इन द एज ग्रुप ऑफ टिल द 14 to 15 ईयर्स इट वाज 83, मतलब 100 में से जो बच्चे जो 7 साल 6 या 7 साल को हम कह सकते हैं जिस स्कूल में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उस एज से लेकर के 14-15 तक पहुंचते पहुंचते केवल 83% पीपल बच्चे ही स्कूल जाते थे। और आप इससे और ऊपर लेवल में जाओ, 14-15 के बाद कॉलेज लाइफ में जाओ, उसका डिग्री लेवल में जाओ, तो और भी परसेंटेज क्या होगा, कॉलेज जाने वाले यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों का घटता चला जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल तक की कैलकुलेट लेकर के हम चलते 14-15 साल, मतलब कम से कम 10वीं पास। आप देखते होगे अपने ही आसपास कि बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे बच्चे 10वीं करते करते स्कूल जाना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इट मीन्स क्या, उस वहां से अगर देखा जाए तो वहां पर अटेंडेंस रेशियो उनका क्या हो जाता जाएगा, डाउन हो जाएगा। आप देखते हो कि आपके एरिया में या कहीं भी जितने प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी तुम्हारे दोस्त होंगे या फ्रेंड्स होंगे जो प्राइमरी स्कूल में तो आपके साथ थे, लेकिन बड़े बड़ी क्लास आते आते बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए। आगे हम लोग देखते हैं तो नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर बात करें तो नेट अटेंडेंस रेशियो में कितना है, नेट अटेंडेंस रेशियो में हरियाणा 61, केरला 83 और बिहार 43। मीन्स ओवरऑल नाउ यू विल फाइनली जस्ट कंपेयर दिस टू टेबल्स। अब दोनों टेबल्स को फाइनली कंपेयर करोगे तो आप पाते हो कि इकोनॉमिकल कंसर्न में, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के कंसर्न में हरियाणा डेवलप है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं कंट्री का गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखते हैं तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट में हम पाते हैं कि डेवलप्ड स्टेट जो इंडिया की है, तो इंडिया के डेवलप्ड स्टेट में किसका नाम, हरियाणा से के ऊपर किसका है, केरला और मिजोरम जैसे स्टेट का है। तो इकोनॉमिकल कंसर्न इज नॉट ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर शोइंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट। तो एक्चुअल कंडीशंस डेवलपमेंट को शो करने के लिए क्या होना चाहिए, कि मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम के अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो है। ठीक है, अब ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखते हो इन सारे कंसर्न में केरला यहाँ पर भले ही यहाँ पर देखते इससे पीछे है, लेकिन ये सारे कंसर्न में केरला जो है हरियाणा से काफी आगे है, इसलिए हरियाणा इज much developed than Kerala is much developed than Haryana, right? And condition of Bihar is in front of you. Perhaps we are responsible for that. We are always trying to save the money anyway. We are not going to give the importance of the qualityful education. We and our parents also just thinking over what? Just thinking over how can we save money. So we should not be always money minded, right, dear students? So I think it is clear to everyone. Now here once again I have written the definition of infant mortality rate. Infant mortality rate is what? It indicates the number of children that die before the age of 1 year. एक साल जन्म लेने के बाद 1 साल या उससे पहले ही जितने बच्चे की 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें जितने बच्चे की डेथ हो जाती है उसी को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। 7 से ज़्यादा उम्र के कितने लोग अपना सिग्नेचर भी नहीं कर पाते हैं, पढ़ लिख भी नहीं पाते। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। लिटरेट मीन्स यू कैन अपना सिग्नेचर कर सकते हो, कुछ रीड्स पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, इतना अगर हो तो इट मीन्स यू आर लिटरेट, राइट। लेकिन पढ़कर लिख करके समझ करके जब अपना एनालिसिस आप दे सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो, तब आप कहा जाएगा कि आप एजुकेटेड हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर। So with one more topic I will come in front of you in the next video, or I am just trying that we will just give you live classes, but I think this platform is much better than live classes. In live classes perhaps in 30 or 40 minutes such details information will not be delivered. मुझे जो लगता है
कि अगर हम लाइव क्लास में लेंगे तो एक पॉइंट इतनी टॉपिक इतने एक्सप्लेन हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर आई थिंक डिस्टर्बेंसेज होने की भी चांसेज ज़्यादा होगी। फिर भी आप लोग का जैसा व्यूज होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे, लेकिन जितना मन से हम पढ़ा रहे हैं उतना मन से आप भी पढ़ें। हम भी कैसे जिंदा रहें इसके बारे में भी आप सोचें, तभी जा कर के हमारी गाड़ी ढंग से आगे बढ़ेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेरी सून वी विल मीट अगेन। थैंक यू।